میرے آقا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور اس وقت ہم اپنے اس کارکرم کا نام رکھتے ہیں مسلم معاشرہ، کیونکہ آج ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ حالات کہاں سے کہاں ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کہاں پہنچ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا، اور اس کارکرم میں یہ پروگرام جو ہے وہ صرف آپسی گفتگو ہے۔ ہم سمجھنا چاہیں گے ایک دوسرے سے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے معاشرے کو رکھنا ہے، حالات کیسے ہیں، کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہے، آگے کس طرح ان غلطیوں کو سدھارنا ہے، اور کیسے ہم اپنے معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ حالات جس طرح سے ہوتے جا رہے ہیں اس پر ہمیں اپنے نوجوانوں کو خاص کر کے سنبھالنا ہوگا، ان میں دینی معلومات ڈالنی ہوگی، واٹس ایپ یونیورسٹی سے ہٹا کر انہیں دین کے معاملے پہ لانا ہوگا، انہیں دین بھی سمجھانا ہوگا۔ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے ماضی میں رہے مبلغ اور آج معاشرے کو بہت نزدیک سے دیکھنے والے جیلانی ٹور اینڈ ٹریولز کے مالک شیر خان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ حالات کیسے ہیں انڈیا میں اور انڈیا سے باہر۔ شیر خان جی، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خوش آمدید آپ کے لیے، اور صرف یہی معاملہ ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، دین سے کس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں، اور معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہر گلی میں ہمارا نوجوان جو ہے کسی نہ کسی نشے میں دھت نظر آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے معاشرے پہ جو ہم بات کر رہے ہیں جی، یہ ہر روز ہونا چاہیے۔ ہر ذی علم انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کی وہ قدر بھی کرے، اور قدر کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی فکر بھی کرے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، شاید ہماری جوانی کا، ماشاءاللہ ہمارے تعلقات کافی سالوں سے ہیں، تو ایک زمانہ تھا کہ اگر ہم چھوٹے تھے جب، تو ہم کسی بڑے کو باہر دیکھتے تھے کہ وہ آ رہا ہے، اور اس کا ادب کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص کوئی چھوٹی موٹی برائی کر رہا ہے تو اس سے رک جاتا تھا۔ جو معاشرے کی آپ نے بات کی، جس طریقے سے ہم نے اس کو شروعات کی ہے اس پروگرام کو، اللہ کرے کہ لوگوں تک بات پہنچے اور سمجھے کہ جو پہلے کا معاشرہ تھا اور ابھی کا معاشرہ ہے، جس طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین حالانکہ زیادہ پھیل رہا ہے، دین بھی کوشش کرے کہ واٹس ایپ سے سیکھے، اور وہ بھی جو غلط میسج دی جاتی ہے۔ جی، تو جس طریقے کا معاشرہ آج ہے، جیسے ہم پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگ ادب کرتے تھے، کوئی چھوٹے موٹے اگر ایسی چیزیں کر رہے ہوتے تھے، چھوٹے موٹے گناہ کر رہے ہوتے تھے، تو بڑے آنے کے بعد صبر جاتے تھے۔ بالکل۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہے، ادب ہی نہیں، کچھ بھی کر رہا ہے ادب نہیں، کوئی شور بھی مچا رہا ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تو ابھی گھر کا بھی ماحول ایسا ہو گیا ہے۔ پہلے گھر میں بھی کیا تھا کہ بہت ادب تھا، والدین کا بھی احترام ختم ہو گیا، والدین کا احترام ختم ہو گیا ہے، اور چاچا چاچی ماما مامی، پہلے ایسا تھا کہ ماما چاچا ایسا کسی کو دیکھ لیتے تھے تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کہیں چھپنے لگ جاتے تھے۔ آج تو دراصل شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ سگریٹ، جیسے آپ نے نشہ کی بات کی تو سگریٹ سے شروعات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ بنداس ہو جا رہا ہے اپنے ماما کے سامنے، چاچا کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے، تو جب سگریٹ پینے میں بنداس ہو جا رہا ہے۔ شیخان بھائی، شرم کی بات تو یہ ہے کہ والدین اپنے چھوٹے بچوں سے گٹکا منگاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ میں گٹکا آتا ہے، سگریٹ آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے یہ ماحول نہیں تھا، بالکل، کہ آدمی یہ سوچتا تھا کہ کسی بچے کے ہاتھ میں، اپنے گھر کے بچے کے ہاتھ سے نہیں، دوسرے کے گھر کے بچے کے بھی ہاتھ سے یہ پان بیڑی سگریٹ نہیں منگاتا تھا، تو کہ وہ دکان والا ہے وہ دیتا نہیں تھا۔ دکان والے ایسے تھے پہلے کہ بچوں کو یہ سب سامان نہیں دیتے تھے کہ تو نہیں پی رہا ہے،
लेकिन अब तो उनका बिजनेस है, अब तो कोई भी देने को तैयार है। पहले तो लोग वॉशरूम में भी चेक करते थे कि यार ये लड़का जा रहा है तो अंदर से बांस नहीं आ रही, लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि लड़का जा रहा है तो पी रहा है तो कोई किसी को परवाह ही नहीं। अरे अब तो फैशन हो गया है, लोग जो है वो वो हुक्का पार्लर बना चुके हैं। हुक्का पार्लर बना चुके पूरी फैमिली जाकर हुक्का पीती है। बेशर्मी की हद तो ये हो चुकी तो है। ये माशरा पता नहीं किस तर्ज अमल पर चलने लगा और बेहयाइयां बढ़ गई। इसकी वजूहत आपके हिसाब से, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से सवाल करते, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके नजरिए में क्या वजूहत हो सकती है कि ये माशरा इस तरफ क्यों जा रहा है? बेअदबी की तरफ जा रहा है, बदतमीजी की तरफ जा रहा है, उरियानियत की तरफ जा रहा है। शेरखान भाई, इसकी सारी वजह जो है ना सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टीवी है। क्योंकि हमने क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हमने दे दिया है। उस पर पता नहीं किस किस तरीके से शॉर्ट चलते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसे शॉर्ट देखते जा रहे हैं, उरियानियत उसमें आ रही है, गंदे ऐड आ रहे हैं उसमें, ऐसे गंदे ऐड आ रहे हैं जो बच्चे कभी, हम बड़े कभी नहीं देखे थे, हमने वो छोटे बच्चे उसमें आ रहे हैं। पता नहीं किस किस तरह से महिला औरतों के जो खुसूसी ऐड थे वो वहां नजर आ रहे हैं, बच्चे उसे देख रहे हैं, गंदगी वहां से नजर आ रही है। मतलब आपके कहने के मुताबिक टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल जिस तरह से क्या बोलते हैं देश जो है वो एडवांस होता जा रहा है, उसी तरह से गंदगी देश में एडवांस होती जा रही है। टेक्नोलॉजी एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ना, अभी जैसे बहुत सारे ऐसे भी मामले आते हैं कि बच्ची कहीं पर जो है वो किसी से फ्रेंडशिप कर रही है। कई ऐसे वीडियोस भी हम देखते हैं कि बिल्कुल बुरखे वालियां जो है वो किसी के साथ सड़कों पर अजीब तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि पहले एक दौर ऐसा भी था, माह रमजान चल रहा है, मैं लोगों को बता दूं कि ये हमारी गुफ्तगू माह रमजान में हो रही है। माह रमजान में पहले क्या था कि लोग रोजे का तो एहतराम करते थे, और अगर खाते थे, अगर औरतें किसी वजह से रोजा नहीं रख पाती थी तो वो माशरे में खुलेआम खाती पीती नहीं कर खाते थे। लेकिन आज का माहौल आप देखिए, मार्केट में चले जाए, खास करके नाकुदा मोहल्ला और मनीष मार्केट और पता नहीं कितनी कौन सी मार्केट है, खुलेआम लोग खा पी रहे। शेरखान भाई ये बता रहे कि हम रोजा नहीं रखें। मार्केट छोड़ दो, आप सड़कों पर देख ले, पानी पूरी खाते हुए नजर आएंगे आपको। ये क्या हो रहा है? मतलब ये शर्म और हया खत्म हो रही। क्यों मालूम है? दीनी मालूमात हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। जो लड़कियां अभी मोबाइल के जरिए जवान हो रही है ना, उनमें दीन नहीं है, दीन खत्म होता जा रहा है। रमजान की अहमियत उनको नहीं पता चल रही, वालिदैन की अहमियत उनको नहीं पता चल रही, उनको बताया नहीं जा रहा है कि दीन तुम्हें क्या सिखाता है। तुम एक लड़की नहीं हो बल्कि तुम एक शहजादी हो, तुम एक इस्लाम की शहजादी हो। जब तुम बाहर निकलती हो तो उसका अदब अलग होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, लगना चाहिए लोगों को कि एक मुसलमान लड़की जा रही है। तुम अपने हाथ से अपनी इज्जत खुद गवा रही हो। मेरी वजह है कि दूसरे लोग आपको मेरा नजरिया ये है आफाक भाई इसमें कि अगर वालिदैन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए। लेकिन वालिदैन कैसे स्ट्रिक्ट हो? उनको खुद इल्म नहीं है, खुद उनके पास दीन नहीं है, तो वो कैसे स्ट्रिक्ट हो गए? वालिदैन के लिए भी जरूरी है कि वालिदैन इल्म हासिल करें। बिल्कुल, तो पहले इसी से शुरू करते हैं कि वालिदैन इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद जो है वो थोड़ा सा घर के मिजाज के अंदर, अभी उसकी भी वजूहत बताता हूँ कि मैंने देखा है कई माहौल में कि माँ किसी से फ्रेंडशिप की हुई है, बाप कहीं से किसी और से फ्रेंडशिप किया हुआ है, एक दूसरे के छुपाने के चक्कर में बच्चों को आजाद छोड़ दिया। बिल्कुल, और बच्चे आजाद होने के बाद जो है फिर वो और आगे जा रहे हैं। हाँ, और एक इसमें ये भी है कि हम जो आज अपने आप को फक्र महसूस करते हैं, वो क्यों फक्र महसूस करते हैं कि हम रील बनाते हैं, हम यूट्यूबर हैं। आज लड़कियां देखो, हमारे फॉलोअर्स, हाँ, बेपर्दा होके फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया पर वो आम अपने आप को कर रही हैं। पता नहीं क्यों नकाब को, मैं तो कहता हूँ नकाब को उन्होंने एकदम बेइज्जत कर दिया है। हिजाबी ग्रुप, हिजाबी ये, हिजाबी वो, और पता नहीं कैसे कैसे हिजाब अजब तरीके के डांस भी हो रहे हैं, हर चीज दिखाई अजब तरीके से जो है वो ये औरतों की आजादी के नाम पर मैं तो कहता हूँ फहेज गोई हो रही है। लोगों को के सामने अपने आप को आप बेइज्जत कर रहे हैं। दीन जिस तरीके से बहुत सारी तंजीमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी, हम लोग भी, आपने जैसे शुरुआत में बताया, हम भी किसी तंजीम से वाबस्ता रहे। पहले तंजीम इतना काम कर रही है, अपना काम हर तंजीम कर रही है, और दीन जो है वो मोबाइल के जरिए भी फैल रहा है। बिल्कुल, मगर ये उरियानियत खत्म क्यों नहीं हो रही है? दरअसल जो तंजीमें काम कर रही है ना, सालों से काम कर रही है, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनमें भी खुलूस खत्म हो चुका है। अफाक भाई पॉइंट पे आए
है ना, उसमें भी खुलूस खत्म हो चुका है। अब वहां पर अपनी इमेज और पोस्ट के लिए लोग मर रहे हैं। वो चाहते कि ये तमाम जितने भी मेरे अंडर काम करे वो मेरा हुक्म माने, किसी और का ना माने। अब उन्हें अल्लाह वहां पर बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल का डर खत्म हो गया है। अब ये कि जितने भी लोग हैं मेरे अंडर चले। अब आपने ऐसा मौजू छेड़ा है, पता नहीं ये वक्त कहां पर जाएगा। तो खैर, तो ये वजह है कि उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अल्लाह और बहुत सारे ऐसे उसमें लोग हैं जो खुलूस से काम करे, इसकी वजह से वो तंजीमें चल रही हैं। जी जी। लेकिन आज भी उसमें इस तरह की, मैं तो कहता हूं, सियासी दौर शुरू हो चुका है कि जो कभी इस्लाम ने देखा भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से सियासत चल रही है दीन के नाम। हम अपने असल मौजू से भटक चुके हैं। मतलब नहीं, हमारा यही मौजू है। मतलब नहीं कि हम किस तरह से अपने माशरे में चल रहे हैं। आपकी हमारी नहीं बात कर रहा हूँ जी, तंजीमों की बात कर, तंजीमें जो हम असल मौजू से भटक चुके हैं और हम ऐसी राह अभी इख्तियार कर चुके हैं कि जिसका असर माशरे पे पड़ नहीं रहा। बिल्कुल। पहले हम लोग काम करते थे गली गली, कुछ तो लोग सुनते थे और आते थे करीब। आज लोग दूर भागते हैं। क्यों दूर भाग रहे हैं? क्योंकि आज आपके अंदर खुलूस खत्म, जैसे आपने बताया, आपकी जुबान में ताकत खत्म हो गई। हाँ, जुबान की ताकत खत्म हो गई, खुलूस खत्म हो गया। सामने सच बोलते, बाहर जाके झूठ बोलते, किसे क्या पता। आज जिसके पास पोस्ट आ गई है, जिसके पास सरमाया है, जिसके पास वक्त ऐसा उसके कब्जे में है, तो वो जो चाहे मर्जी कर रहा है। और ऐसे ही लोग जो है दीनदार बने बैठे हैं। अल्लाह ताला जो है वो खुलूस की दौलत अता फरमाए। बहुत ही हेल्दी बात है ये। अल्लाह ताला हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं उसे अल्लाह ताला खत्म करे। सबसे पहली बात तो ये कि वालिदैन को जो सोचना चाहिए, जैसे आपने कहा कि पहले वालिदैन से शुरू करना चाहिए, तो वालिदैन को सोचना चाहिए कि उनके हुकूक क्या हैं। जी। माशरा कितना भी गंदा हो जाए, माशरे में कितने भी सास बहू को लड़ाने वाले कार्यक्रम प्रोग्राम चलते रहे, आप उससे दूर हो जाएं और देखें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, अगर वो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। उन तमाम चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बंदिश होगी, कुछ ना कुछ तो दीनी माहौल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जहां पर आप जो है वो अपने बच्चों को रोक सकेंगे और ये शिकायत नहीं करेंगे कि बच्चे हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। सीरियल्स के हिसाब से आजकल घर चल रहे हैं, आप बिल्कुल का मतलब ये बिल्कुल, तो ये भी खत्म होना चाहिए। सीरियल और रील्स दरअसल क्या है कि उरियानियत जो है अल्लाह ताला हमारे माशरे से दूर करे, और नंगापन जो चल रहा है, उरियानियत फैशन जो फैशन हो रहा है, गरीबी फैशन हमारे दरमियान और बस इस फिक्र के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये टॉक को जो है हम लोग यहीं अभी खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं आफाक भाई के अल्फाज कह रहा हूँ कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करें, लाइक करें और आगे से इंशाल्लाह इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये बातें लोगों में पहुंचे और लोग इस बात की सिर्फ फिक्र करें। अगर आज सिर्फ फिक्र करने लग जाए ना तो हो सकता है कि कोई ना कोई इसमें आगे बढ़कर जो है अपने घर से अगर हम शुरुआत करते हैं, आफाक भाई, अगर अपने घर से हम शुरुआत करते हैं तो पूरा माशरा चेंज हो सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम में कोई चीज अच्छी लगी या खामी नजर आई तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आइंदा कोई प्रोग्राम करें तो उसमें अपनी गलतियों को सुधारें और उसको ख्याल रखें। और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर हम किसी और से बात करें तो वो भी आप बताएं। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे उनसे भी बात किया जाए। इंशाल्लाह अगला टॉपिक आपके कमेंट्स के हिसाब से चलता रहेगा और हम आप तक छोटी मोटी खबरें, छोटी मोटी बातें रखते रहेंगे ताकि हम थोड़ा तो सही, कम से कम जर्रा बराबर तो हम कुछ सीख सकेंगे इंशाल्लाह। बस यही उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे और लोगों तक दीन और माशरे को ठीक करने के लिए हमारा साथ। एक आखिरी इल्तिमास तमाम व्यूअर्स से कि घर में कुरान शरीफ पढ़ने का माहौल और कुरान शरीफ को समझने का माहौल पैदा करें। कुरान शरीफ से दूरी आज हमें बहुत दूर ले जा रही है। बिल्कुल, अगर हम घर में कुरान और नमाज जब पढ़ेंगे ना तो हमारा बच्चा भी देखेगा, वो आपके साथ उसी हरकतों को करने की कोशिश करेगा और वो भी पूछेगा अब्बा ये क्या है, तब आप बताओगे बेटा ये नमाज है, ये कुरान है जिसमें रब तबारक व तआला ने हर एक का हुकूक दिया है और हर एक को जीने का रास्ता बताया है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।